Assalamu alaikum and welcome to NBP Game Changers, a podcast series that explores real stories behind performance, progress, and people at National Bank of Pakistan. I'm your host Mohammad Ibrahim Qazi, and in today's episode, The Capital Code, we speak with a leader whose strategic clarity and people-first approach transformed an entire region. This conversation is not just about leadership, it's about vision, execution, and a kind of thinking that inspires growth from within. My guest today is Mr. Gulbahar Khan, currently serving as GM Business Karachi and formerly the GM who led Islamabad Group through most remarkable transformation. Sir, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से. So when you took over the Islamabad Group, what was your impression? आपको क्या लगा? Challenge is more about structure या फिर कुछ और? When you joined in, तो आपका जो plan था, वो आपकी जो strategy थी was previously planned या फिर वो change होती गई with the ground realities? It evolved. कैसे था? Thank you, Mr. Qazi. I want to share my personal story about what happens जी. when you just step to in completely different world of work. Yes. Honestly, have you ever stepped into a new workplace where motivation rules have completely changed? That is exactly what it looked like when I moved from decades from private sector into a public sector organization. You know, in the private sector, the pace is electric, Yes. multiple campaigns, Very fast pace. Yes. quick wins, Quick wins. and you always chase and wait, even for bigger things to happen. बिल्कुल ऐसे ही है, sir. But in private sector, things follow some rules, procedures. They move somehow slowly. In the public sector. Yeah, then, rewards take time. बिल्कुल ऐसे ही. Promotions, yes, they are there, but they follow some procedures. बिल्कुल ऐसे ही है, sir. So, motivation has often to come from within the team itself. So, my initial, thought was, if people are already doing good job at some certain level, what will push them far more and to go beyond? Then, over time, I learned that any drive for higher performance has to be inclusive for everyone, not for some specific group or for some specific territory. Then I also learned that people at National Bank are deeply trained to follow, procedures. Since I had very frequent interaction with the people who are the frontliners who are in sales and marketing. So here also, something outside their normal way of doing things can be a hard sell. That's true. You also, ask about the challenges. Challenges are everywhere, but here's the thing. The new challenges can actually be very exciting. So that's how I felt when I first entered into the, public sector organization. तो सर एज यू वर सेइंग कि चैलेंजेस आपने काफ़ी सारे फेस किए और जाहिर है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर आते हैं और इतना बड़ा ग्रुप इस्लामाबाद ग्रुप आपको मिला, देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर्किंग अंडर यू, तो जाहिर है एक लीडरशिप चेंज होती है, लोगों के अपने सवालात भी होते हैं, तो चैलेंजेस काफ़ी बार डेवलप हो जाते हैं. तो आपने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए एंड हाउ डिड यू रिजॉल्व देम? It's quite simple. The key is you have to be consistent and you have to be persistent in what you have already planned. जी. When people see actions are rewarded, they start believing in your vision. बिल्कुल. Once they believe, they take ownership. That's when the real transformation, takes place. It's not because you ask them to do, but because they decided हम्म. it was theirs then. ये नहीं होता कि ठीक है आपने उनको कह दिया कि आप ये काम करें, क्योंकि जब उन्होंने देख लिया कि चीज़ें जिस तरह चल रही हैं, जी. एक्शंस जो एफर्ट्स उनके चल रहे हैं वो रिकॉग्नाइज हो रही हैं, तो देन देयर इज द पॉइंट कि you will see the real signs of change. In your early days when you joined, what was one of the biggest barrier that you had to personally, like उसको आपने personally face किया और resolve किया? The one biggest barrier you faced. Honestly, मैं इसको शायद बैरियर नहीं कहूँगा. You know, whether the organization is small or is a very large organization, people are accustomed to follow some established routines. So if there is any small change, no matter how small,
it then creates a sort of discomfort. So, in my opinion, and I believe in this, that anything that could make the biggest impact was going out to the market and connecting with the client. So, in that initiative, I observed and I felt a little bit hesitation. I won't call it too much resistance. So that was the point where I saw somehow uncertainty or a kind of hesitation. आपने किस तरह आपकी टीम पे ट्रस्ट किस तरह डेवलप किया? मतलब टीम के पास एक नया लीडर आ गया, एक नया विजन आ गया, एक नई सोच आ गई। वो आपके बताए हुए चीज़ों पे चलेंगे, नए एम्स आ गए। तो टीम का एक ट्रस्ट फैक्टर भी होता है। लोग ट्रस्ट करना चाहते हैं अपने लीडर्स के ऊपर। You know, in our professional lives, whatever we do, honestly, is our drive to achieve some shared goals of the organization. When it comes to building trust and confidence among your team, then it depends how effectively you communicate your shared goals to your teams. And then how effectively you foster your trust and confidence in them. So that is the key. Once they, start trusting and believing in what you are going to plan, then actually you are on spot. And that is the point where you must be assured of, that you have been able to gain their trust and confidence. सो आपने अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू ही अपने लोगों पे बिल्कुल 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 क्योंकि आपने उनको ये पहले तो बताना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं। उसको आप जब एक इफेक्टिवली आप उनको कम्युनिकेट कर देते हैं कि देखें जो हम करने जा रहे हैं ये आपका भी है और मेरा भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर उनकी ऑनरशिप आ जाती है कि यस समथिंग व्हिच आई वुड बी प्राउड ऑफ इफ आई कुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू इट। ट्रू, देयर विन इज योर विन इज देयर विन। ऑफ कोर्स ऐसे ही ऑफ टीम कोर्स काम करती है। तो सर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर एवरी सक्सेस हैज अ ब्लूप्रिंट। तो आपके लिए कैपिटल कोड क्या था? वाज इट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, पीपल्स ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ओवरऑल बिजनेस कल्चर? Honestly, it wasn't just one thing. अच्छा। Rather a combination of, so many factors. Each played its part and impact varied depending on its nature. I would say the most important initiative was the implementation of performance management system, which we call MPIs, monthly जी, जी, जी। performance indicators. तो ये पूरे रिटेल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, Yes. this was introduced by you No, this was introduced by the head office अच्छा for the entire retail, for the group. entire retail group. Here the challenge was the implementation part. Since, this system is very transparent, very objective, and results are, shared with everyone timely. So it acted a very strong motivator. अच्छा सर, कोई ऐसा बोल्ड डिसीजन आपको लेना पड़ा हो ड्यूरिंग दैट टाइम जो बड़ा रिस्की हो उस वक्त के लिए? I can't remember or I can't say there was any risky decision. क्योंकि देखें retail banking is all about people. बिल्कुल। Yes, whatever we did, whatever decision we were taking in the best interest of the bank first and then for the benefit of the people. ठीक है, कुछ हम लोगों की शफलिंग ज़रूर हमने की वो तो होती रहती है और सर। इनिशियली लोगों की एक हेजिटेशन ज़रूर थी, लेकिन That is also the part of the process. yes, that was done in the best interest of the bank and बिल्कुल। even in the best interest of the employees. क्योंकि जहाँ वो अच्छा काम कर सकते हैं, जहाँ उनके स्ट्रेंथ है, जहाँ पे उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उसी रोल पे वो फिर कॉन्फिडेंटली उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने परफॉर्म किया। तो सर व्हेन यू इंडक्टेड द फ्रेश स्टूडेंट तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आई होगी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टाफ, क्योंकि वो हमेशा ही होता है जब कोई नए लोग आ रहे होते हैं तो पुराने लोग मतलब जब तक वो लोग आपस में मिलजुल कर बैठ के काम करें, बात करें, थोड़ा बहुत तो इशू आ रहे होते हैं। तो हाउ डिड यू फेस दैट? देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, नेशनल बैंक एक बहुत बड़ा इदारा है यस, और ये एक आइकॉनिक इदारा भी है। बिल्कुल ऐसे ही। सो यहाँ पे जो स्टाफ एट्रिशन है
फॉर ऑब्वियस रीजंस लाइक रिटायरमेंट, हम्म, वो नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा बोर्ड भी बहुत सपोर्टिव है, हमारी टॉप मैनेजमेंट और स्पेशली हमारे हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं, उनकी एक डेडिकेशन है रिसोर्सिंग में। बिल्कुल। तो इस वजह से द कल्चर एट नेशनल बैंक हैज़ बीन नर्चर्ड वेरी वेलकमिंग एंड वेरी इंक्लूसिव। तो यहाँ पे कोई भी बंदा आके, स्पेशली मैं अपनी आप बात करूँगा, तो मुझे कोई ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ या मैं कोई बिल्कुल नया हूँ। हालांकि मैंने कभी पहले नेशनल बैंक में काम नहीं किया था, इट वाज इंटायरली न्यू फॉर मी, बट इवन देन आई वुड से कि नेशनल बैंक का कल्चर बहुत ही वेलकमिंग है, हम्म, बहुत ही सपोर्टिव है, और लोग रिस्पेक्टफुल हैं। जी, लोग वो लोग है। एक दूसरे के साथ मिल के काम करने को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो दैट इंक्लूसिव कल्चर is I would say a big asset Yeah. for National Bank. अच्छा, सो लुकिंग बैक आपको क्या लगता है कि कौन से इनिशिएटिव से जिनसे सबसे ज्यादा आरओआई हमारे पास आया? वाज इट एमपीआईज, वाज इट ट्रेनिंग्स और कस्टमर फोकस? सबसे ज्यादा आरओआई हमें कहाँ से आया? जिन 3 चीज़ों की आप बात कर रहे हैं ना, ये तीनों कहीं जाके कन्वर्ज ज़रूर होती हैं, लेकिन दे आर 3 डिस्टिंक्ट थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रेनिंग इज़ अ बिग इनेबलर, बिल्कुल। और नेशनल बैंक में जो ट्रेनिंग हमारा एलएनडी है। डिवीज़न है, एलएनडी यस। है, बहुत वेल इक्विप्ड है। ऑनगोइंग ट्रेनिंग्स मुख्तलिफ टॉपिक पे, बिल्कुल। स्किल डेवलपमेंट पे, ग्रूमिंग पे, कल्चर चेंज पे, ये ट्रेनिंग्स होती रहती है। प्रोडक्ट नॉलेज पे भी हमारी ट्रेनिंग यू होती नो रहती है, हर चीज। दे आर द ऑनगोइंग प्रोग्राम्स। जी। देन एमपीआई, एमपीआई एक बैरोमीटर है, यू कैन गेज द परफॉर्मेंस। इट्स अ ट्रैकर। यस, ऑफ कोर्स, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, बिल्कुल। ऑल आर लिंक टू दैट। बिल्कुल। लेकिन हमारा जो फोकस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कस्टमर फोकस है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके ना कस्टमर फोकस पे कन्वर्ज होनी है, और उसको स्ट्रेंथन करना है, उस इनिशिएटिव को आगे लेके जाना है, क्योंकि देयर इज समथिंग व्हिच हैज द हाईएस्ट आरओआई, आई वुड से। सर बिल्कुल, इन द एंड वी ऑल आर हियर फॉर द कस्टमर्स। यस, ये यस, बैंक ऑफ है ही कोर्स, कस्टमर्स के लिए। बिल्कुल दैट्स व्हाई बिल्कुल। वी कॉल इट नेशंस बैंक। यस, इट्स फॉर द यस। होल नेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर स्मूथ प्ले। तो आपको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कब और कहाँ मिला? एंड सेकेंडली, क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट आया व्हेन यू थॉट के माय प्लान नीड्स अ रीसेट? ड्यूरिंग दोज मोमेंट्स, जब आप ये सब चीजें सोच रहे थे कि प्लान रीसेट होना चाहिए, मुझे इतना रेजिस्टेंस आ रहा है, व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट केप्ट यू फोकस्ड मैं ड्यूरिंग दैट मोमेंट? रेजिस्टेंस नहीं कहूँगा। होता क्या है, इन एक्चुअल वर्ड, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि लोग एक ख़ास तरीके से काम करने के आदी हैं, हम्म, और वो एक काम कितने अरसे से करते आ रहे हैं, and if there is slight change in that routine, that creates you know a sort of hesitation or a sort of discomfort. शुरू के रिएक्शन जो थे, they were quite predictable, and for example, this is not how things are done here, या we have never done this before, या वो ये कहते थे कि there's not something new, we already know this, or they would say we tried it before but it failed. Yeah, there were some such feedback, like we have heard talk like this but nothing actually changes. The message underneath all of this was lack of trust or lack of confidence in what we were trying to do. But we kept on responding with patience, with consistency, and with persistency. The truth is, actually, what we were doing was not quite new to the industry. These were proven tools with outstanding results. But yes, they had to be adopted and to fit the reality of a public sector organization. तो इस तरीके से ना, with passage of time, things started moving, results started coming in, और लोगों को एक confidence आ गया कि yes, this is what it should be. हमने ये महसूस किया कि अब चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं, और लोग बड़ी खुशी से
आप कह सकते हैं कि आगे जा रही हैं। कभी-कभी ऐसे भी होता था कि कुछ प्रोग्रेस होता था, we would celebrate that progress very publicly and very generously, no matter how small that progress was. So that, reinforced again the confidence that people could see. There was recognition, there was appreciation. So these were some, very encouraging And things all that these happened. recognitions and appreciation was been done within the team by you. Yes, yes, अच्छा, of अच्छा। course. तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता था कि the progress, slowed down. But we never let the frustration take over. We responded very patiently. We kept on holding, supporting and, um, grooming our people. और उससे मज़ीद जो चीज़ आप करना चाहते थे, वो मज़ीद उसको एक तक़वियत मिली। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि देखें, चेंज तो ओवरनाइट नहीं आता। ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। Takes time, बिल्कुल। इट टेक्स टाइम। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये फिर एक न्यू नॉर्मल बन जाता है लोगों के लिए, एक रूटीन बन जाता है एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ देयर हैबिट। तो सर कभी ऐसा होता था कि जैसे यू वर लीडिंग द इस्लामाबाद ग्रुप, तो आपके जो बीएम्स हैं या आपके रीजनल हेड्स हैं या नीचे के जो फ्रंट लाइन स्टाफ हैं, वो कभी आपके पास आते हों कि सर मेरे एमपीआईज में ये आई एम अनएबल टू अचीव दिस, आई नीड सम गाइडलाइंस, तो वन ऑन वन सेशन विद द ब्रांच मैनेजर विद अ बॉम्ब आप करते थे? ये तो आप यूँ समझे कि ये तो एक आप समझ लें कि ये रूटीन का एक रूटीन प्रैक्टिस रही है। प्रैक्टिस है। जो चीज़ आपके किसी भी टीम मेंबर को अगर समझ नहीं आ रही है या उसको ये क्लैरिटी नहीं है कि हाउ डज़ इट वर्क, तो देन ऑब्वियसली यू आर इन द फॉल बैक फॉर देम। So with you, they used to get a proper guideline, ऑफ कोर्स। एक्शन प्लान कि किस तरह किस चीज़ को फुलफिल करना है। यू नीड टू गिव दैट कंफर्ट। यस। वो आपका ब्रांच मैनेजर है, आपका रिलेशनशिप मैनेजर है या जो भी है, वो अगर किसी चीज़ के लिए आपके पास आना चाहता है ना, उसको ये कंप्लीट कॉन्फिडेंस हो कि ये मेरा मसला हल कर देगा। यहाँ या मेरी जो सुनवाई चीज़ होगी। जहाँ पे मुझे इसकी वो एक्सप्लेनेशन चाहिए या जिसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग समहाउ शैलो है या क्लियर नहीं है, तो ही शुड हैव कॉन्फिडेंस कि यार पहले तो मैं इस बंदे से मिल सकता हूँ। ये नहीं होगा कि पता नहीं वो बिज़ी होगा और पता नहीं कितना टाइम जो लगेगा अक्सर हम उससे अपने मिलने में। बॉसेस के लिए करते हैं कि थोड़ी-सी एक रखते हैं कि यार कहीं वो बिज़ी ना हो, हम उनका टाइम ना खराब हो रहा होगा। लेकिन वही बात है ना कि देखिए, जो हम करते हैं, वो हमारा एक शेयर्ड गोल है। बिल्कुल। सो इट्स आवर प्रोफेशनल कमिटमेंट। ट्रू। हम में से कोई किसी लेवल पे हो सकता है, कोई जीएम हो सकता है, कोई रीजनल हेड हो सकता है। लेकिन लुक एट व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स। हमारे गोल्स तो कम है ना। तो गोल्स तो अगर हम सबके कॉमन है, बिल्कुल। उसके लिए अगर वो आपसे मिलना चाहता है, जब भी मिलना चाहता है, इवन आफ्टर ऑफिस आवर्स वो आपको कॉल करना चाहता है, तो देन You were always available for your team. I was available every time and still We this still is a continuous journey. मुझे बताइएगा हाउ डिड यू इंश्योर्ड कि आपकी जो एनर्जी है ड्यूरिंग द विजिट दैट लास्टेड इन द ब्रांच, लाइक आपके जाने के बाद भी लोग वर लाइक इम्प्लीमेंटेशंस वर बीइंग डन इन द ब्रांच, जिस तरह की आपकी गाइडेंस थी जो आप उनको दे रहे थे जब आप विजिट्स कर रहे थे, उनसे जो भी डिस्कशंस हो रही थी, कुछ पॉइंटर्स निकल रहे होंगे जिन पे काम करना होगा, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ ज़ाहिर है बिलो द लाइन होंगे जिनको अपलिफ्ट करना होगा उन चीज़ों को। तो हाउ डू यू फील कि आपके विजिट के बाद भी आपकी जो एनर्जी थी वो ब्रांच के अंदर लास्टेड, एक इफेक्ट वहाँ पे रहे उसका? देखिए पहले तो मैं अपनी बात करूँगा। हाँ। मैं बाय चॉइस बैंकर हूँ। जो काम मैं करता हूँ आई एन्जॉय दैट। दैट पैशन कीप्स मी मोटिवेटेड ऑल द टाइम, दैट कीप्स मी अपबीट, दैट कीप्स मी एक्साइटेड एवरी टाइम। तो जो चीज़ आपके दिल से निकलेगी, आपने पहले तो जो एक कॉमन और जो शेयर्ड गोल्स है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया, आपने इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर दिया अपनी टीम के साथ। फिर वो यकीनन जो चीज़ आपके दिल से निकलती है, उनके दिल को तो छू लेती होगी ना। असर तो करती होगी। यकीनन, यकीनन। और फिर उस स्ट्रेटजी में उनका अपना फीडबैक भी शामिल है और उससे एक सेंस ऑफ ओनरशिप
आ जाती है उनमें। बिल्कुल डेवलप होती है। उनको पता है कि देखें ये चीज़ मैंने कही थी और ये इसमें शामिल है, ये फीडबैक मेरा था, वो इसमें शामिल है। तो वही बात है कि देखें एट द एंड ऑफ द डे इज़ ए शेयर्ड मिशन, बिल्कुल, यू नो, ऐसा ही है सर। टुवर्ड्स ए शेयर्ड विजन। तो देन दैट शेयर्ड विजन कीप्स एवरीबॉडी, यू नो, अलाइव। सर एक सवाल मेरा और है, यू यू टोल्ड अस कि आपका भी इंटरेक्शन रहा विद द कस्टमर्स, जो बैंक के बहुत लॉयल कस्टमर्स हैं या बैंक ब्रांचेस के जो भी हमारे कस्टमर्स हैं जो आते हैं, जिनके सैलरीज या बिजनेसेस हमारे बैंक के थ्रू चल रहे होते हैं, ट्रांजैक्शंस चल रही होती हैं। तो कोई ऐसा फीडबैक, कोई ऐसा कैंडिड फीडबैक आपको मिला हो किसी कस्टमर से व्हिच मेक यू रियलाइज कि यार इस चीज़ को भी हमने इम्प्लीमेंट करना है अपने प्लान के अंदर, अपनी एग्जीक्यूशन के अंदर? कोई ऐसी चीज़ आपको, कोई ऐसा गिव अवे या कोई ऐसा टेक अवे आपको मिला हो उनसे? दिस वाज़ क्वाइट ऑब्वियस। जिस तरह हम ब्रांच विज़िट पे गए और मैंने जिस तरह आपको बताया कि हम क्लाइंट से मिलते थे, आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी, जो लॉयल्टी हमारे कस्टमर की हमारे बैंक के साथ है, दैट इज़ इनक्रेडिबल। क्योंकि ये बैंक जो है ना, 4 जो जनरेशन्स हैं, उनका बैंक है। ये बैंक हर पाकिस्तानी का बैंक है। ऐसे ही ये हमारा बैंक है, इज़ द बैंक ऑफ द नेशन। तो जो प्राइड फ़ील करते हैं ना हमारे कस्टमर, इस बैंक के साथ एसोसिएट होके, इसमें अपना अकाउंट खोल के, फिर उनकी लॉयल्टी भी एक लेवल पे होती है। तो हर कस्टमर से जब मैं मिलता था, मेरा ये बिलीफ जो है ना, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जाता था कि देखें ये कस्टमर कितने लॉयल है हमारे साथ। देयर वाज़, यू नो, वेरी अनबिलीवेबल। सर कोई ऐसा मोमेंट किसी कस्टमर के साथ रहा हो जो आपको टच हो गया हो, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा किस्सा आप हमसे शेयर करना चाहें? ऐसी तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। हमें एक कस्टमर से मिलने का इत्तेफ़ाक हुआ। उन्होंने मुझे ये कहा कि देखिए हम समझते हैं कि अगर बैंक अकाउंट है ना, तो इसका मतलब नेशनल बैंक का अकाउंट है। हाँ। उन्होंने मुझे ये कहा कि अब मेरे जो है ना ग्रैंड चिल्ड्रन भी जो है ना बड़े हो गए हैं। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ नेशनल बैंक में ही अकाउंट। क्या बात है! अब दैट्स अ ट्रू लॉयल दैट कस्टमर। दैट लेवल ऑफ, यू नो, ट्रस्ट वी कुड सी अमंग आवर कस्टमर्स। तो सर अब हम एग्जीक्यूशन और प्लानिंग फेज से आगे चलते हैं और बात करते हैं फ्रंटलाइनर्स की। ऑफ कोर्स। अपने लोगों को, अपनी टीम को अलाइन रखना विद योर मिशन एंड विद योर विजन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि पीपल्स फैक्टर स्पेसिफिकली अगर आप मुझे बताएं कि हाउ इम्पोर्टेंट वाज इट? In retail banking, the who part always overweighs everything else. हम्म। Honestly speaking, retail banking at its core is all about people, True. product or services. They are hardly, and I would say they are rarely the game changers. ओके। What truly sets a bank apart is its human capital. लेकिन खुशी की बात, एक गुड न्यूज़ ये है कि इट्स अ रियलिटी। नेशनल बैंक में आपको टैलेंट की कोई कमी महसूस नहीं होगी। टैलेंट बहुत है हमारे लोगों पास। का जो ऑपरेशनल नो हाउ है, जो नॉलेज है, दैट इज़ फिनोमिनल। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं नेशनल बैंक में, जो ऑपरेशनल एक्सेलेंस है, उसको हम कंबाइन करते हैं एग्रेसिव बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ। फिर जो रिजल्ट आते हैं, उसमें आपका इतना कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उसमें ऑपरेशनल रिस्क नहीं होते, उसमें कंप्लायंस एक ऑप्टिमम लेवल का होता है। तो जो भी रिजल्ट आपके पास आते हैं, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द ग्रोथ। देयर मस्ट बी अ टाइम जब आपने ये चीज़ रियलाइज़ की होगी कि दैट योर टीम हैज़ स्टार्टेड ओनिंग योर मिशन। ऐसा कोई वक़्त ज़रूर आया होगा कि फिर लोगों ने भी अपने आप को अलाइन किया होगा आपके मिशन के साथ। तो कैसा लगा था आपको? मतलब फिर आपने उसके बाद क्या स्टेप्स लिए? वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, थिंग्स व्हिच स्टार्टेड, यू नो, हैपनिंग। फॉर एग्जांपल, हम रिव्यू मीटिंग में जब हम चीज़ों को डिस्कस करते थे, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो ब्रांच मैनेजर हैं, वो जो चीज़ें ऑलरेडी अचीव कर चुके थे, उस पे वो बातें इतनी नहीं करते थे। रादर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे आगे वो क्या काम करने जा रहे हैं। सो दैट वाज़ द शिफ्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्लानिंग टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट्स। चेंज या आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन कह दें,
वो उस वक्त आपको नजर आता है, एंड दैट इज द रियल साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. बिल्कुल. When people get away from short term, just like hitting the monthly results, and they move to long term planning, and they start setting their sights on the horizon. So that is the moment you feel, yes, एक shift आ गया है. लोग अब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचते, Of long term बल्कि planning. उनकी सोच में, उनकी प्लानिंग में हर चीज़ आपको एक लॉन्ग टर्म नज़र आती है, और लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग हमेशा सस्टेनेबल होती है. और दैट वर द रियल साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चेंज. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी इस इस्लामाबाद ग्रुप वाली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो आपकी जर्नी रही है, उसको समराइज करें, तो आप किस तरह करेंगे? और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट दैट वन डिसीजन यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ, तो वो क्या है? The entire journey, I would say, was incredible. Every passing day was exciting. 3.5 सालों की जो जर्नी होती है वो काफ़ी टाइम होता है. Yes, we took multiple decisions. लेकिन जो एक डिसीजन है which paid off well, I would say, वो ये था कि putting right people in the right roles. That I can say was the decision that was very useful, where we put right people in right roles and according to their strength, their capabilities. अच्छा सर, लास्टली आई वांट टू आस्क यू कि अगर कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं, या जो भी हमारे बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, हु वांट टू ब्रिंग चेंज, हु वांट्स टू ड्राइव चेंज, तो वो एक मैसेज क्या होगा? मैसेज तो बहुत ही सादा है और बहुत ही डायरेक्ट है. पहले तो इस फैक्ट को हमने अप्रिशिएट करना है कि नेशनल बैंक is the bank of the nation, यस. and we are lucky to be associated with this iconic institution. Here, our responsibilities are far bigger than any banker in any private bank who can even think of. जब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हम पे हैं, तो then we have to be prepared with dedication, with full commitment. मेरे हिसाब से तो ये है कि हमारा विजन ये होना चाहिए, और ऑफ कोर्स ये है भी, कि sometimes down the road, if any person, any Pakistani at any corner of this country thinks of better banking products and services, and National Bank is the first bank coming into his mind, remember, that is the moment of real success. ये हमारा विजन है, और ये हमारा विजन होना भी चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए सर. बीइंग ऑन द टॉप ऑफ द माइंड. ऑफ कोर्स. एक छोटी सी मेरी गुजारिश भी है, एक छोटा सा सवाल भी है. इतनी बड़ी टीम को लीड करते हैं, इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर लेते हैं, हाउ डू यू ओवरकम दैट स्ट्रेस, दैट प्रेशर? आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी हैबिट, कोई आदत जिससे आप फील करते हो यार अब मैं रिलैक्स हूँ? रेगुलर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन किताबें पढ़ने का शौक है, और आई लव म्यूजिक. डू यू प्ले समथिंग एज वेल? मैं ट्रेडिशनल जो सितार है ना, जिसको आप कह सकते हैं कि चिताली सितार, वो मैं बजाता हूँ. क्या हमें ये शर्फ हासिल हो सकता है कि हम आपको देखें, आप वो सितार बजाएं? बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करते हैं सर, बिल्कुल कोशिश करें.
Sir, thank you for such a soulful music. इसने पूरा एक मूड ही स्विच कर दिया, एक मूड ही चेंज कर दिया. It was really beautiful. Thank you. Pleasure. सर, आपसे बात करके आज इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि लीडरशिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट कंट्रोल. It's about courage, clarity and connections. Thank you for giving us time, and this is a small token of appreciation from our side. Sir, Thank you so please. much. Thank you. Thank you very much for joining in. Thank you. Viewers, this was NBP Game Changers Episode 1. If you feel this story moved you, inspired you, or made you think differently, stay tuned, because the next story might just be yours. Your host, Mohammad Ibrahim Qazi, signing off. Thank you and Allah Hafiz.